औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। बच्चों, मूसा अलैहिस कैमुल कल हमने ये पढ़ा था, तो आज इससे आगे हम चलते हैं। Sama was very curious to know who this Musa Ali was. However, it was a bright Sunday morning and Sama was very happy because she had no other friends at Nubra. Sama and Dolma, after enjoying gurgur tea and mukmuk, left for Musa Ali's home. तो क्या हुआ? समा वेरी क्यूरियस थी, वो ज़बरदस्त कि मैं मूसा अली को देखूं, मैं मूसा अली के पास जाऊं तो मैं उसको देखूं। इस दिन संडे थी, तो समा बहुत खुश थी क्योंकि उसका और कोई दोस्त नोबरा में नहीं था। समा एंड डोलमा आफ्टर इंजॉइंग गुरगुटी, तो इन्होंने जिस तरह यहाँ हमारे यहाँ नुन चाय होती है, वहाँ लद्दाख में गुरगुर टी होती है, उन्होंने उसका मज़ा लिया एंड लेफ्ट फॉर मूसा अलीज होम, और वो मूसा अली के घर चली गई। Sama was surprised to see the camel calf in the company of a boy. Dixit Dolma, pointing towards the boy, said, "Look, he is Musa Ali." After exchanging pleasantries, Dolma asked Musa Ali to tell them something about the bacterian camel. Musa Ali asked them to accompany him along with his camel calf into the vicinity of his village, Diskit, where a group of wild bacterians was present. The bacterian camel is originally a native of Mongolia, where it is called the Hefki. However, it is also found in remote areas of Gobi and Takliman Desert in Mongolia and China, where it was heavily hunted for its height and meat. It is interesting to know that most of the transport across the Karakoram and Silk route was on the double hampered bacterian camel because of its outstanding performance on the mountains and desert trails. The bacterian camel is one of the best prepared mammals for the harsh extremes of the desert, faced with scorching heat, chilling cold, and scarcity of food and water. Many animals struggle, but the wild hipkoi faced all the odds. The camel can cover around 15 kilometers a day. The camel's long, narrow nostril and dense eyelashes effectively prevent the damage from sandstorms. It sweats and urinates little, thus prolonging resistance to thirst. Summer. It is so great to see the camel calf clinging to Musa Ali. Musa Ali, I have many times tried to find the camel calf's mother so that the camel can join its herd because I take it my mortal duty. Dolma, it is so happy with you, it treats you as its mother. तो बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके बाद इसका माने देखने की कोशिश करेंगे। तो इसके बाद क्या हुआ? Sama was surprised to see the camel calf in the company of a boy. Dixit Dolma, pointing towards the boy, said, "Look, he is Musa Ali." तो इसने मूसा अली के साथ एक कैफ था, ये कैमल कैफ था, कैमल का एक बच्चा था जो इसके साथ था। तो समा ने इससे कहा दीक्षित की, आप देखिए, वो मूसा अली है। तो आफ्टर एक्सचेंजिंग प्लीजेंट्रीज, डोलमा आस्क्ड मूसा अली टू टेल देम समथिंग अबाउट द बैक्टीरियन कैमल। तो इसने डोलमा ने मूसा अली से कहा कि मुझे कुछ बैक्टीरियल कैमल के बारे में बताइए। मूसा अली आस्क्ड देम टू accompany along with his camel calf into the vicinity of his village. उसने कहा, मूसा अली ने इनको, कि आप मेरे साथ मेरे गाँव आइए, मैं आपको वहाँ सारे कैमल दिखाऊंगा।
Dixit while a group of wild bacterians was present. तो इन्होंने क्या देखा वहाँ इन कैमलों का एक बहुत बड़ा ग्रुप था. The bacterial camel is originally a native Mongolia where it is called the Hifkai. तो इसके ये बैक्टीरियल कैमल जो है ये ओरिजिनली मंगोलिया का जहाँ इसे कहा जाता है हिफकै कहा जाता है. However, it is found in remote areas of Gobi and Tak Liman deserts in Mongolia and China where it is heavily hunted for its hide and meat. इसके अलावा ये चाइना में भी पाया जाता है, मंगोलिया के रिमोट एरियाज़ में भी पाया जाता है. ये भी इंटरेस्टिंग है कि इसको बहुत सारे कामों में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के बिना पर ये इसको बहुत सारे कामों में इस्तेमाल किया जाता है. बैक्टीरियन कैमल इज़ वन ऑफ द बेस्ट prepared animals for harsh extremes of the desert faced with scorching heat, chilling cold and scarcity of food and water. Many animals struggle but wild Cafe faces all the odds. The camel can cover around 50 kilometers a day. और इसके बारे में ये जो वहाँ की तपती रेगिस्तानों की तपती गर्मी जो होती है, हीट होती है या चिलिंग कोल्ड ज़बरदस्त सर्दी होती है या कहीं गुज़ा नहीं मिलता है तो ये सब कुछ सहन कर लेता है इसको. और जानवरों के मुकाबले में इसको वो प्रॉब्लम वो परेशानी नहीं होती है, ये सब कुछ सहन कर लेता है. और ये तकरीबन एक दिन में 50 किलोमीटर के इर्द गिर्द घूम सकता है. The camel's long, narrow, hostile and dense ice effectively prevent damage from sandstorms. It sweats and urinates little, thus prolonging resistance to thirst. इसको पानी भी प्यास भी कम लगती है क्योंकि इसे रेजिस्ट करता है और इसके साथ जो यूरिनेटरी सिस्टम है ये यूरिन भी कम करता है और इसको उस वजह से इसको पानी भी प्यास भी कम लगती है. और इसके जो आई लैशेस हैं, जो आंखों के ऊपर ये आई लैशेस होते हैं, ये इसको प्रिवेंट करते हैं, इस कैमल को ऊँट को प्रिवेंट करते हैं. किससे? सैंड स्टॉर्म से. जब रेगिस्तानों में जब आंधी आती है तो वो सैंड के वो छोटे छोटे ज़रे आंखों में चले जाते हैं, लेकिन इस कैमल को जो इसके ये आई लैशेस हैं आंखों के ऊपर जो होते हैं आई लैशेस, ये इसको प्रिवेंट करते हैं. तो इसके साथ ही जो ये कैमल कैफ था वो छोटा बच्चा था, ये मूसा अली के साथ था. मूसा अली ने इसे इनको कहा समा और डोलमा, क्योंकि मैंने इनको बहुत बार ये कोशिश की कि मैं इसे अपनी माँ से मिलाऊँ, इस बच्चे को अपनी माँ से मिलाऊँ, ये मेरी बुनियादी ड्यूटी है. डोलमा वापस कहने लगी इस इज़ सो हैप्पी विद यू, इट ट्रीट्स यू एज इट इज़ मदर. ये बहुत खुश है आपके साथ, ये आपको अपनी माँ समझता है. तो थैंक यू स्टूडेंट्स.